So I'm now starting with the section on 304B, which is dowry death. देखो dowry death के लिए 3 prerequisites हैं. For dowry death, there are 3 prerequisites. Please write down. Number one, that it is an offense of strict liability. That it is an offense of strict liability. That it is an offense of strict liability, which means whatever you want to write, which means there is no requirement of mens rea. Which means there is no requirement of mens rea. तुम्हें मैं कल बता चुका था that 268 public nuisance, उसके बाद किडनैपिंग फ्रॉम 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के लिए मेंस रे की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मेंस रे की रिक्वायरमेंट सोसाइटी डिसाइड करती है. इसमें भी इसको भी ऐड कर लीजिएगा उसमें 304B. 304B is an offense of strict liability, means that there is no mens rea required under if you have to prove dowry death. Second point, that the prosecution has to prove the demand for cruelty. The prosecution has to prove the demand for cruelty soon before the death. अभी soon before the death को मैं analyze करूंगा तुम्हारे सामने अभी. What do you mean by soon before the death? That is demand for cruelty soon before the death plus unnatural death of the woman within 7 years of the marriage. 7 years को underline कर लीजिएगा please. 7 years of the marriage. Demand for cruelty soon before the death plus unnatural death of the woman within 7 years of the marriage. मैं शादी के 7 साल के अंदर उस औरत को मरना चाहिए. इसी और वो जो the third point is unnatural death. Unnatural death can be either homicidal or suicidal. वैसे तो मुझे कल पढ़ाना है what do you mean by homicide, but अभी लिख के रख लो. Homicide means killing of a person by killing of a human being by a human being. Homicide या homicidal means killing of a human being by a human being. और suicidal या तो सुसाइड किया उसने. अगर आपको डाउरी डेथ प्रूफ करनी है ना, तो ये 3 चीजें प्रूफ कर दीजिए, आपकी डाउरी डेथ प्रूफ हो जाएगी. देखो नेक्स्ट पॉइंट, जब भी डाउरी डेथ का चार्ज लगता है आप पे, मतलब जब भी आप पे एक एक्विजिशन लगी डाउरी डेथ की, डाउरी डेथ इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय आर. दिस मीन्स रेड विद. Dowry death is always read with section 498A, which is cruelty. These two sections go hand in hand. Next point, death हुई है. डेथ किसका एक्ट सीरियस है? कल बताया था सर मर्डर. तो सेक्शन 302 भी लगेगा साथ साथ उस अक्यूज्ड पे.
जिस अक्यूज्ड की वाइफ मरी है उस पे 3 सेक्शन लगेंगे, 302 मर्डर, 304 बी विच इज टू बी रेड विद सेक्शन 498 ए। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए फॉर योर ओन सिंपल अंडरस्टैंडिंग, दैट soon before her death there was a demand, DD stands for demand for dowry cruelty, that soon before the death there was a demand for dowry cruelty. देखो, ये समझ लेना पहले कि हमेशा जब भी हम डाउरी डेथ की बात करेंगे तो क्रुएलिटी का चार्ज पैरेलल चलेगा। अगर आप क्रुएलिटी प्रूव नहीं कर पाए तो ये भी प्रूव नहीं हो सकता आपसे, बिकॉज देखो ना ये क्या लिखा है, सून बिफोर द डेथ देयर वाज डिमांड फॉर डाउरी क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी, तो अगर आप क्रुएलिटी प्रूव नहीं कर पाए विच इज सेक्शन 498 ए ऑफ द आईपीसी, देन 304 बी विच इज डाउरी डेथ आपसे प्रूव नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते एज पर लॉ। एंड इसके साथ साथ सेक्शन 113B of the Indian Evidence Act also comes into picture. Section 113B also comes into the picture. 113B says कि अगर आपने ये 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स प्रूव करे जो मैंने यहाँ लिखे हैं ऊपर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, अगर ये आपने प्रूव कर दिए तो प्रिजम्पशन आ जाएगा कि द डेथ ऑफ द वाइफ इज बिकॉज ऑफ द हस्बैंड, that the death of the wife is because of the husband. अब obviously ये presumption तो है, but this presumption is a rebuttable presumption. Rebuttable presumption मतलब you can give evidence to the contrary if you have to get released. आप प्रूफ कर दो कि आपकी वजह से वो मरी नहीं है, that it was not because of the dowry cruelty that the woman died, it was some other reason that the woman died, so you will be saved. Otherwise ये presumption आपके against है स्टार्टिंग से ही, कोर्ट ये presumption लेके चलेगा हमेशा। जब भी उसके पास डाउरी डेथ का केस आएगा तो कोर्ट हमसे प्रिजम्पशन लेके चलता है 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की डेथ हस्बैंड ने कॉज की है या उसके इन लॉज ने कॉज की है, कोर्ट ये ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन ले लेगा। बट दिस प्रिजम्पशन इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, यू कैन गिव एविडेंस टू प्रूव दैट यू और योर पेरेंट्स मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स जो वाइफ के लिए इन लॉज होंगे वो उनकी वजह से डेथ नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, charge of section 498A, charge of section 498A has to be proved, then only section 304B will be proved. तो पहले आपको क्रुएलिटी प्रूव करनी पड़ेगी और तभी प्रूव कर पाओगे that it was because of that cruelty that the dowry death took place. तो unless you prove the cruelty there can be no case. एक सेंटेंस लिख लीजिए प्लीज, unless there is a case, unless and until you prove that there was a cruelty, unless you prove that there was a cruelty, there will be no case of dowry death. Until and unless you prove cruelty, there will be no case of dowry death. तो मतलब अगर 498A आपसे प्रूव नहीं हो पाया तो 304B भी आप प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, 304B और 498A। ये समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट समझिए प्लीज। देखो मैंने अभी 3 चार्ज लगाए, 2 टू बी स्पेसिफिक। एक 304B का which is always read with section 498A which is cruelty, and number 2 section 302 murder। ये 2 एलिगेशन लगेगी हस्बैंड पे और उसके इन लॉज पे कि डेथ कॉज हुई है ना, तो डेथ एक्टर सीरियस है मर्डर का तो 302, और
next is for cruelty. Soon before the death there was dowry cruelty. तो cruelty ये और dowry death ये. Very important point. कि these two sections they run independently. Meaning अगर आप murder prove नहीं कर पाए, for example, if you do not prove murder, you have to prove these two sections independently with independent evidences. So if you are incapable of proving murder, that does not mean that you cannot prove dowry death. That does not mean that you cannot prove dowry death. And vice versa. अगर ये प्रूव हो गया और ये प्रूव नहीं हो सका, या ये प्रूव हो गया ये प्रूव नहीं हो सका, ये दोनों इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, इंडिपेंडेंट सेक्शंस लगेंगे हस्बैंड पे. दोनों में से कोई एक प्रूव कर लो या दोनों प्रूव कर लो, डिफरेंट एविडेंसेस से. क्योंकि सेक्शन 302 तो प्योरली सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस प्रूव होगा. सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से प्रूव होगा. सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, मतलब जो उस समय सर्कमस्टांस में मौजूद थे, आई विटनेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो या तो आप मर्डर उससे प्रूव कर लो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से, और अगर आप नहीं प्रूव कर सके मर्डर, तो आप ये प्रूव कर लो तो भी चल जाएगा काम आपका. एंड वाइस वर्सा, अगर आप डाउरी डेथ और क्रुएलिटी प्रूव नहीं कर सके बट आपने मर्डर प्रूव कर दिया, तो तब भी आप हस्बैंड को जेल भिजवा सकते हो. ये दोनों सेक्शंस इंडिपेंडेंटली, जस्ट होल्ड ऑन, ये दोनों सेक्शंस इंडिपेंडेंटली रूल चलते हैं इस सेक्शन में. So either you prove 302 and you could not prove section 304B read with 498A, which is cruelty and dowry death, or you prove cruelty and dowry death and you could not prove murder. It is up to you. You could prove both. You could prove both. तो जो इसमें से सेक्शन 302 बड़ा सेक्शन है, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, इसमें 7 साल की सजा है, 7 या 10 साल की. आई विल हैव टू सी, अभी देख लेता हूँ, रुक जाओ, तुरंत बता देता हूँ. 304B, में डाउरी डेथ ये है 7 years, 7 साल की सजा है इसमें, 7 years. तो अगर आप ये प्रूव नहीं कर सके और ये प्रूव कर ले तो 7 साल के लिए जेल में जाओगे, और अगर आप ये प्रूव नहीं कर सके तो ये प्रूव करो तो मैक्सिमम इसमें लाइफ है, मिनिमम लाइफ है, मैक्सिमम डेथ है, तो लाइफ में जाओगे. और अगर आपने दोनों प्रूव कर दिए तो दोनों सेंटेंसेस विल रन कॉन्करेंटली. तो पहले यहाँ अगर प्रूव हुआ है और दिस इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो आपको मैं बता चुका हूँ कल ही कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स फॉर लाइफ. तो पहले 7 साल खत्म होगा, तो जैसे 7 years आपने प्रिजन में काट लिए, यू आर फ्री ऑफ चार्ज ऑफ डाउरी डेथ. But still you cannot come out because you are in for life. So these two sections run independently. You can either prove both of them or you can prove one after the other. ये समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है. अब डाउरी डेथ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है. डाउरी डेथ क्या है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, आपने जैसे बोला. यस कॉग्निजेबल ऑफेंस. मैं चेक कर लेता हूँ, तूने पूछा है तो. डाउरी डेथ इट इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल. यस, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है. पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, आपको बेल नहीं मिलेगी, बेल कोर्ट से लेनी पड़ेगी आपको. नेक्स्ट पॉइंट वो छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये. when I say unnatural death, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक होता है कि जल के मर गई वाइफ, एक होता है वाइफ उसको जला दिया, एक होता है उसको मार दिया, यू किल हर, एक होता है उसको जला के मार दिया, या उसको मान लो गला काट दिया उसका, यू स्लिट द थ्रोट ऑफ द वाइफ. तो पॉइंट इज कि अननेचुरल डेथ होनी चाहिए. There has to be unnatural death. It can be either homicidal, मतलब हस्बैंड या उसके इन-लॉज ने वाइफ को मार दिया, या जला के मार दिया, या उसको गला काट के मार दिया, या एक्सेट्रा. होमिसाइडल या सुसाइडल, कि उसने खुद ही सुसाइड कर लिया.
अब पॉइंट ये है, एंड नाउ आई विल कम टू अ केस व्हिच सॉर्ट ऑफ आई डिफेंडेड. क्या हुआ कि देयर वाज दिस हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ थे, और हस्बैंड के फर्दर आगे इन-लॉज थे. मैं आईएल से इन-लॉज लिख रहा हूँ, ठीक है. अब पॉइंट इज कि ये हस्बैंड और उसके इन-लॉज ना वाइफ को जब शादी करी हस्बैंड और उसके इन-लॉज ने, तो इन्होंने दहेज मांगा. दे आस्क्ड फॉर डाउरी. अब डाउरी में इन्होंने बहुत सारी चीजें मांगी, और वन ऑफ द थिंग्स व्हिच दे आस्क्ड वाज फॉर अ सीलिंग फैन. पंखा. तो वाइफ थोड़ी सी शायद पैसे कम पड़ गए होंगे उसके पास, ये सीलिंग फैन नहीं ला पाई अपने घर से. तो हस्बैंड और उसकी इन-लॉज ने बहुत तंग किया इसको. हस्बैंड और उसके इन-लॉज पेरेंट्स ने बहुत तंग किया इसको, मारते थे. कभी कभी गर्म पानी, मतलब शी वाज सो रही होती थी रात को, तो उस पर जाके गर्म पानी डाल दिया, उसकी स्किन जल गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये चलता रहा. और हस्बैंड सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता, और इन-लॉज सो जाते. फिर हस्बैंड आता, शराब पीता, फिर वाइफ को मारता. ये चलता रहा. तो जब हस्बैंड अपने ऑफिस जाता और इन-लॉज सो रहे होते थे, तो वाइफ अपने कमरे में बैठ के शी यूज्ड टू क्राई एंड साइमल्टेनियसली शी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू हर पेरेंट्स कि देखो मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है. यहाँ पर क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सीलिंग फैन नहीं ला पाई थी अपने घर से. एनीवेज, so she used to write letters and she used to cry, and after crying she used to write letters to her parents, और वो चुपचाप जाके फिर बाय पोस्ट से भेजती थी उसको, अपने पेरेंट्स को, कि देखो मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है इस घर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वन फाइन डे व्हाट हैपेंड कि हस्बैंड सुधर गया. हस्बैंड वाज चेंज्ड. चाहे कोई पंडित से मिलके आया होगा, कोई पूजा वूजा करवाई होगी, तो बदल गया. अब वो वाइफ की बहुत इज्जत करता था, वाइफ को सिनेमा मूवी दिखाने भी लेके जाता था. ही वाज वेरी रोमांटिक विद द वाइफ, और वाइफ को बाहर खाना खिलाने लेके जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये चेंज्ड. वाइफ ने ये चेंज्ड कि हस्बैंड चेंज हो गया और हस्बैंड बहुत ध्यान रखता है, इसकी कोई लेटर अपने पेरेंट्स को नहीं लिखी कि मैं अब मेरे घर में सब कुशल मंगल है और कोई मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं है, नाउ एवरीथिंग इज हंकी डोरी. इस बात की लेटर वाइफ ने अपने पेरेंट्स को नहीं लिखी. सिर्फ इसी बात की लेटर लिखी कि वो मुझे, ये दोनों बहुत अत्याचार कर रहे हैं मेरे पे. वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, हस्बैंड वाज इन द ऑफिस और वाइफ कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोने के बाद वो सीढ़ियां में शायद पानी रहा होगा या साबुन का पानी रहा होगा, वो स्लिप करी, और स्लिप करके धम धम के नीचे आई, उसका सर लगा लोहे के साथ, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट. द वाइफ डाइड ऑन द स्पॉट. वाइफ डाइड ऑन द स्पॉट. अब हस्बैंड पे और उसके इन-लॉज पे सेक्शन 304B रेड विद 498A का चार्ज लगा, और क्योंकि मर भी गई तो सेक्शन 302 का चार्ज लगा. तो पुलिस आई, अरेस्ट करके ले गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत जो भी बेल नहीं मिल पाई, वो हुआ. I was inducted in this case, so I'm at a sort of a later stage where the first time the bail was not granted. तो फिर मेरे पास एक केस आया, a colleague of mine brought it to me. I filed a second bail application and then I argued, and then finally the bail was granted. बेल मिल गई, तो ये बेल पे बाहर आ गए. जब ट्रायल हुआ तो अब आप मुझे बताओ कि क्रूवलिटी के तो लेटर लिखी, वो बदल गया और सब कुछ ठीक हो गया, और उसकी इज्जत और केयर करता रहा, इसी को लेटर लिखी नहीं. विटनेसेस भी हैं, और ये तो देखो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही लेटर्स ही है. सबसे बड़ा एविडेंस तो ये लेटर ही है. और अगल बगल के पड़ोसियों ने भी टेस्टिफाई, मतलब ये बयान दिया कि हाँ, हमें आवाज आती थी वाइफ के रोने की, मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये सारे एविडेंसेस मेरे खिलाफ हैं. नाउ
now if you would have been the judge, तो आप क्या करते? बताओ. Convict. सोच समझ के दिमाग चलाओ. सर मैं ट्राई. ये चेक किया जाता कि सून बिफोर द डेथ की क्रुएलिटी हुई थी या नहीं. सून बिफोर वो मरी जब. नो तुम नहीं. सर जैसे नेबर्स को पहले आवाज आती थी उनकी लड़ाई करने की, बट जब वो सब नॉर्मल हो गया तो नेबर्स को आवाज आनी बंद हो गई होगी. इट कैन बी कुछ नॉर्मलाइज हो गया. सेम विद द लेटर्स कि वो लेटर लिखने बंद कर दिए जब सब कुछ नॉर्मल हो गया. देखो, आई विल टेल यू, मैं जरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे. 7 years of marriage. नहीं वो छोड़ो, वो सब पॉइंट नहीं है. यू सी, आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये प्रूफ तुमने इसका सुना नहीं. मैं ध्यान तुम्हें ये बोला था कि हस्बैंड ऑफिस में था जब ये सब काम हुआ. तो फाइनली मैंने ऑफिस से उसकी अटेंडेंस निकलवाई और ये प्रूफ किया कि ये जब वाइफ गिर के मरी तो हस्बैंड वाज इन द ऑफिस, क्योंकि अटेंडेंस शोज दैट हस्बैंड वाज प्रेजेंट इन द ऑफिस. नंबर 1. नंबर 2, जो तुम लोगों ने भी बोला कि चैतन्य ने बोला कि नेबर्स को आवाज आनी बंद हो गई और एक दो नेबर्स ने देखा भी कि अब ये दोनों हाथ पकड़ के दे यूज्ड टू कम लेट एट नाइट बात करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो जो चेंज्ड बिहेवियर की बात है जो वो भी प्रूफ किया. प्लस देयर वर मोर एविडेंसेस. ये प्रूफ करने के बाद आई फाइनली गॉट acquitted both husband and their in-laws. तुमने क्यों नहीं ये बात नोटिस की कि मैं तुम्हें जब बताया था सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है. कोर्ट तो मान चुकी थी जैसी इस पे चार्ज लगा 304B का. द कोर्ट इमीडिएटली was taking presumption against the husband and his parents. बट ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है. मैंने एविडेंसेस दिए और उसे प्रूव किया कि ये डेथ कॉज हस्बैंड और उसकी इन-लॉज की वजह से नहीं हुई, ये अपने आप गिर के मरी है. और अपने पास एविडेंसेस भी थे, अटेंडेंस शीट थी, उसके ऑफिस के वो दोस्त थे जिन्होंने बोला कि हाँ ये हमारे साथ ही था. प्लस नेबर्स की टेस्टिमनी भी थी जिन्होंने टेस्टिफाई किया कि यस हमने देखा था कि अब चेंज हो गया, घर से आवाज नहीं आती थी और हमने भी देखा कि वाइफ खुश रहने लग गई थी. तो इसलिए द हस्बैंड एंड द वाइफ गॉट acquitted. इसलिए द हस्बैंड एंड द वाइफ गॉट acquitted. Now one last point which this section has is, मैं तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया था कि soon before her death. देखो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर डाउरी डेथ लगानी है, अगर डाउरी डेथ का चार्ज लगाना है तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आज शादी हुई है और वाइफ को मरना पड़ेगा 7 साल के अंदर. The wife should die within 7 years of the marriage. 7th day पे भी मरी तो भी चलेगा, लेकिन 7 साल और 1 दिन पे मरी तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा. It has to be within 7 years of the marriage. The wife should have died within 7 years of the marriage. लास्ट डे पे मरेगी तो भी सेक्शन लागू होगा. एक दिन अगर ऊपर हो गया तो सेक्शन लागू नहीं होगा. तो ये बात समझ लो that in order for section 304B read with 498A, if this is to be applicable, if this has to be applied, then the wife should have died within 7 years of the marriage. 7 साल के अंदर वाइफ को मरना पड़ता है. पॉइंट ये है, and this is to be understood, soon before her death she was subjected to dowry cruelty. Soon before her death. ये soon before कितना soon होता है? ये soon before, फॉर एग्जाम्पल अगर आज शादी हुई और 7 साल का पीरियड ये है, ये टाइमलाइन है, अगर ये और मान लो वो मरी यहाँ जाकर है, she has died somewhere here, तो soon before कितना soon होगा, that has to be interpreted. तो अब I will not waste much time. इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ. Soon before is not defined. Soon before is not defined under section 304B.
soon before is not defined under section 3 and 4B. soon अगर वाइफ के साथ पहली क्रूएलिटी यहाँ भी हुई है या यहाँ भी हुई है या यहाँ भी हुई है तो भी चलेगा. soon before का मतलब ये नहीं होता कि अगर वाइफ यहाँ मरी तो क्रूएलिटी यहाँ हुई हो. कुछ कुछ क्रूएलिटी ऐसी होती हैं जो हुई तो सबसे पहले दिन में थी और उसके बाद होना बंद हो गई, बट उस क्रूएलिटी का असर वाइफ के दिमाग पे ऐसा पड़ा कि वो मरी यहाँ जाकर. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस दिन शादी करके आई और उसके 10 दिन के बाद हस्बैंड और उसके इन-लॉज ने उसको गरम गरम पानी में डाल दिया और जल गई और उसको मरी नहीं, ठीक रही. वो ये टाइम था. बट उसके बाद उसका हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो गया और इन-लॉज भी बहुत प्यार करने लग गए. बट इस इंसिडेंट का उस वाइफ पे असर ऐसा पड़ा कि वो मरी इस दिन जाकर, तो भी सून बिफोर कहला जाता है. सून बिफोर की ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है. हाउ विल यू चेक कि उस जो भी लास्ट इंसिडेंट हुआ, अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा है, अगर उस इंसिडेंट का और डेथ के बीच का टाइम गैप बहुत ज्यादा है, तो आप ये चेक करोगे कि जो लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था वाइफ के साथ, उसकी मेंटल ग्रेविटी कितनी थी. क्योंकि मेंटल ग्रेविटी कभी-कभी बहुत सारे ऑफेंसेस की ऐसी होती है कि दिमाग पे असर तो अभी पड़ा, लेकिन आप मरे बहुत टाइम बाद जाकर, तो तब भी सून बिफोर कहला जाएगा. बट एक बात बता दूं, जब पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेशन करी तो वहां पर साबुन का पानी था सीढ़ियों पे, ऑयल नहीं था. अगर ऑयल होता या ऐसा कुछ प्रिपरेशन जो तुमने कहा ऐसा कुछ होता तो सस्पिशन रेज हो सकता था. एक सेंटेंस लिखिए प्लीज. द वर्ड सून बिफोर कन्वर्टेड कॉमन में डाल लीजिएगा प्लीज. The word soon before has reference to not only the time gap. The word soon before has reference to not only the time gap. Has reference to not only the time gap between the earlier causality. Reference to time. The word soon before has reference to not only the time gap between the earlier causality and the death, rather surrounding circumstances has to be proved. Rather, surrounding circumstances has to be proved in the light of the degree and extent of the earlier causality, as to whether the causality would have or the same state of mind would have continued till the date of death. Same state of mind would have continued till the date of the death. If yes, the soon before element is proved. The soon before element is proved. तो एक बात याद रखना बस कि सून बिफोर का कोई टाइम गैप से कोई रेलेवेंस नहीं है. सून अगर शादी आज हुई है, अगर शादी I'll change the ink.
अगर 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 शादी आज हुई है और क्वालिटी उसके ठीक अगले दिन बाद हो गई, बट वो वाइफ यहाँ आके मरी और बीच में कोई क्वालिटी नहीं हुई, बट वो अगले दिन जो क्वालिटी हुई उसका असर वाइफ के दिमाग पे इतना पड़ा कि वो आज जाके मरी, तब भी सून बिफोर कहा जाएगा, बट प्रोवाइडेड उसको 7 साल के अंदर मरना पड़ेगा। She has to die within 7 years of the marriage. उसके बाहर मरेगी तो 304B रेड विद 498A नहीं लागू होगा, तो सिर्फ डेथ हुई है तो 302 लागू होगा बस। For section 304B to apply, the wife should have died within 7 years of the marriage. And soon before का कोई टाइम गैप, कोई टाइम रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, दिस सेक्शन इज ओवर। सर कोई ऐसा एविडेंस देना जिससे कि ऐसा पता चल सके कि डेथ जो हुई है वाइफ की वो सुसाइड की वजह से हुई, प्रेशर ऑफ इन-लॉज। कुछ भी ले लो। हस्बैंड वाइफ ने बहुत मारता पीटता था, फाइनली एक दिन जब सुबह उठा तो वाइफ, उसने देखा वाइफ को कि वो पंखे से लटकी हुई है, तो सुसाइड हो गया। ठीक है जी। सर क्रुएलिटी के एम्बिट में क्या सिर्फ फिजिकल हर्ट आएगा या फिर उसके अलावा हम लोग मेंटल? हाँ, मेंटल सही है सर, फिजिकल मेंटल बोथ। ओके सर। और हाँ जल्दी बोलो। कोर्ट ने इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि पहले डाउरी मांगी गई थी। भाई डाउरी डेथ को प्रूव करने के लिए एलिमेंट मैंने बताया था ना, वो एलिमेंट प्रूव करोगे तभी तो 304B प्रूव होगा आपसे। वो नहीं प्रूव कर पाए तो डाउरी डेथ प्रूव नहीं हो पाएगी आपसे। तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने डाउरी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, कोर्ट तो ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताया ये प्रूव करने पड़ेंगे आपको, अगर आपको डाउरी डेथ लगवाना है तो।